Welcome to our YouTube channel students, e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. So students, today we are going to discuss about the basics of computer. First we are going to discuss some theory and after that I am going to show you some practical on that. Clear everyone? तो I think कुछ लोग पहले absent थे. So first I'll let you know about the course briefing, what all topics we are going to cover in that. First one is basics of computer, that is introduction of computer. After that we are going to start our MS Word, then MS Excel is also called the spreadsheets. Clear? After that we are going to cover MS PowerPoint using the internet, then basic use of AI tools like ChatGPT, and also we are going to discuss in little bit detail about this. At the end of this we are going to take online test on different topics. The plan will be like, first we are going to cover one topic, for example basics of computer. After that you have to give the online test. Similarly, after completing the MS Word you have to complete few projects or practical exercises, and also you have to appear in the online test. Clear? This is how our course will move on. So we are also going to discuss few questions here, and you have to be very active. Also you have to write down those questions and answers, because those questions is going to be appear in your online test. You have to score at least 90% in your online test to clear a particular topic. So let's start with our basic computer skill. What is a computer? Anyone? A computer is an electronic device that can store, retrieve, process data to perform a variety of tasks. So कंप्यूटर क्या हो गया कि भाई इट्स लाइक अ मशीन जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, परफॉर्म कर सकता है, मेल सेंड कर सकते हैं हम इससे, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एंड एक्सेस द इंटरनेट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर्स टू राइट असाइनमेंट्स इन MS Word, वॉच एजुकेशनल वीडियोज ऑन यूट्यूब और अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. With the help of computer only we can use online teaching resources, right? Whatever online test you have given on computers. So it is the main advantage for students that they can give online test on computer. They can study with the help of YouTube and online video lectures. Clear everyone? Now there are various type of computers based on the size and uses. Obviously computers what we are using at home or in the office, right, that is different in comparison to other computers which are storing a huge data, which are processing lot of requests on a regular basis, and that type of computers are called supercomputers as well. Based on the size, these include the desktop computer which we are using at home and offices. Laptops, tablets and smartphones are also called mini handheld computers. For instance, in a classroom a teacher might use a laptop to present a PowerPoint lecture. ठीक है, तो this is also type of computer. स्मार्ट बोर्ड है ना. तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये जो चल रहा है, जो यहाँ पर हम डाल रखा है, इसके अंदर इमेजेस बेसिकली प्रेजेंटेशन की फॉर्म में है जिसके द्वारा ही हम पढ़ा पा रहे हैं. क्लियर है? नाउ बेसिक ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स. CPU. व्हाट इज CPU? CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जिसके अंदर सारा प्रोसेसिंग होता है. जितना भी तुम डाटा स्टोर करते हो, सेव करते हो, ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग वहां हो रही है, तुम्हें सम करना है, ऐड करना है, डाटा सेव करना है, फाइल ओपन करनी है, हर चीज जो है वो CPU में हो रही है. वो आपके मॉनिटर में नहीं हो रही है, जहां पर आप दिख रहा है वहां नहीं हो रही. वो वहां पर सिर्फ आप देख पा रहे हो, उसके द्वारा आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो किसको? CPU को. सही है. रैम क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी memory that stores data being currently used.
दैट मीन्स जो आप काम कर रहे होते हो कंप्यूटर पर, आपने टैब खोला हुआ है, आपने कोई फाइल खोली है, उस टाइम पर जो लाइव काम कर रहे हो, वो जो कंप्यूटर सेव कर रहा है वो कहाँ सेव कर रहा है, वो रैम में कर रहा है। ठीक है, मैं शायद तुम्हें दिखाया भी था पहले मैंने क्या होता है। हियर आई एम गोइंग टू शो यू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसके अंदर हमारा डाटा सेव किया जाता है। क्या है ये, हार्ड डिस्क है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये तो वायर है, बेसिकली कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। आपने जहां से मान लो यहाँ से डाटा सेव करना है कंप्यूटर में से, तो ये लीड उसको यूज करते हैं और इसमें सेव कर देती है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसका यूसेज क्या होता है, मान लो कंप्यूटर के अंदर कभी वायरस आ गया है ना, डाटा अगर आपका बैकअप लेना है, आपने काम किया, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आपको बैकअप लेना है, तो आप इससे बैकअप लेकर अलग से रख सकते हो, सो दैट अगर फ्यूचर में कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो चैलेंज यहाँ पर वो फेस नहीं होगा और आप डाटा इसमें से उठा सकते हो इजीली। सही है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनल हार्ड डिस्क। ये मेन हार्ड डिस्क होती है जो आपको दिखती नहीं है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसमें आपको डाटा सेव करना होता है या ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाता है। वॉट एवर डाटा ऑन विच यू आर वर्किंग इज गोइंग टू सेव with the help of this hard disk only। इस हार्ड डिस्क में जब आप इंस्टॉलेशन होता है कंप्यूटर में, तो देर आर डिफरेंट ड्राइव्स। सी ड्राइव इज अ बाय डिफॉल्ट, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव आप बना सकते हो। क्लियर है। जब आप कभी कंप्यूटर खरीदोगे या उसमें इंस्टॉलेशन करोगे किसी भी नए कंप्यूटर में, तो आप देखेंगे कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, अलग अलग ड्राइव्स बने हुए हैं। क्लियर एवरीवन। तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल हार्ड डिस्क। This is called internal, this is called external hard disk. Now this is RAM। क्या है ये, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो डस्ट वगैरह है, अगर आ गया लॉन्ग टर्म में डस्ट रहता है इसके अंदर, तो ये क्रैश हो जाता है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, बीप करेगा। ठीक है, उस केस में आपको ये जो रैम है दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड। इसकी अलग अलग मेमोरी होती है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की रैम चाहिए, या व्हाट इज द बेसिक यूटिलिटी, या हम कहें व्हाट इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर। मान लो आपको बड़े ऑपरेशंस नहीं चलाने हैं उसके अंदर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डाटा नहीं चलाने हैं, छोटा डाटा चलाना है, तो यू कैन यूज 8 GB ऑफ रैम लाइक दैट। क्लियर है। दिस रैम इज ऑफ 16 GB। ठीक है, 16 GB का रैम है। तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जीबी की रैम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया। नाउ यू हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक मॉनिटर। मॉनिटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो कि डिस्प्ले होता है, जैसे ये वाली स्क्रीन है, राइट। यहाँ पर मॉनिटर होगा जहां पर आप देख पाओगे, जहां पर आप काम कर पा रहे हो। मान लो आपने ए एंटर करा, तो यहाँ पर आपको ए दिखेगा टाइप होता हुआ, दैट इज मॉनिटर। सही है। कीबोर्ड आपको पता है, जहां पर आप टाइप करते हो, जहां से आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, दैट डिवाइस इज कॉल्ड कीबोर्ड, यूज टू टाइप द टेक्स्ट एंड कमांड्स। क्लियर। माउस आपको पता ही है, जहां पर आप कर्सर का यूज करते हो ना, माउस को क्लिक करने के लिए, राइट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज के बारे में, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड अलाउज यू टू रन एप्लीकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कंप्यूटर खरीदा सिर्फ और आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे, नहीं, उसमें आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा। यू विल बी रिक्वायरिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट यू विल बी एबल टू रन योर एप्लीकेशन। यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या है ये, मैनेजेस हार्डवेयर एंड अलाउज यू टू रन एप्लीकेशन। द मोस्ट कॉमन वन इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। दैट मीन्स जब आप एक कंप्यूटर लेते हो तो वो खाली एक बॉक्स होता है, समझ लो, वो किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे। ठीक है। आप कभी भी कोई कंप्यूटर नया लेते हो, वो डब्बा होता है एक तरीके का, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उसमें तो बेकार है, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, खाली बेकार है वो डब्बा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, या आप उसमें विंडोज डालो, लिनक्स डालो, वट एवर। द मोस्ट कॉमन वन इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट हैज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद आइकन्स। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इस पे डिस्कस करेंगे, एक्सेल पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन MS पेंट, दिस इज द एग्जाम्पल। बेसिकली इन विंडोज यू क्लिक द स्टार्ट बटन, टाइप पेंट। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखा देता हूँ। तो जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो
तो इस टाइप के आपको डेस्कटॉप, मतलब इमेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे देखना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टार्ट में जाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, शट डाउन या रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, आप इसे शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, राइट। पावर का बटन होता है नीचे विच इज इन सीपीयू, आप उसे ऑन करेंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पासवर्ड वगैरह वो अलग ही इशू है, पासवर्ड अगर डाला होगा तो पासवर्ड डालोगे स्टार्ट होगा कंप्यूटर। लेकिन अगर आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी, आपको अगर शट डाउन करना है कंप्यूटर को तो आप यहाँ से इस पे विंडो के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है, या आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं अगर अपडेट्स है तो आप रीस्टार्ट उसे कर देंगे। क्लियर हो गया? So now we are going to discuss a few questions on basics of computer, which is going to clear few concept about the computer as well. These are very important question. ये तुम्हारे टेस्ट में आ सकते हैं. So what is computer? A computer is an electronic device that receives input. चलो एक काम करते हैं, तुम्हें मौका देता हूँ, मैं एक एक करके बंदे पढ़ेंगे तुम लोग, हैं? चलो start. What is computer? A computer is an electronic device that receive input, process data, storage information, and Produces output. produce output. Next. Output. What are the four basic functions of a computer? Input, processing, storage, and output. So फोर बेसिक फंक्शंस क्या हो गए भाई? इनपुट डाटा करते हो, प्रोसेस होता है, डाटा स्टोर होता है और फिर आउटपुट देता है वो आपको, राइट। नेक्स्ट, How does a computer help us? It helps us perform tasks such as writing documents, browsing the internet, playing games, and calculating data. सो हाउ डज अ कंप्यूटर हेल्प अस? इट हेल्प अस परफॉर्म टास्क सच एज राइटिंग हम कर सकते हैं, उसके अंदर इंटरनेट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, What is data in computing? Data refers to raw facts and figures that are processed to generate meaningful information. ठीक है ला, ठीक है भाई। व्हाट इज डाटा इन कंप्यूटिंग? डाटा क्या होता है? क्या आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है, अपने यूसेज के लिए, आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, राइट। एक्सेल पे बनाओगे, आपने बहुत सारा डाटा कोलेक्ट किया कंपनीज के अंदर, सब इसी पे चलता है, तो इसी पे डाटा प्रोसेसिंग होती है, बड़ा बड़ा डाटा को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। करो नेक्स्ट। What is information? Information is processed data that is meaningful and useful for decision making. ठीक है, सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी डाटा आपने बनाया कंप्यूटर के ऊपर, उससे आपने क्या इंफॉर्मेशन निकालना है। जैसे कि मान ले स्कूल का अटेंडेंस बनाई जाती है क्लासेस में। Name the main types of computer. Supercomputers, mainframe computers, personal computers, desktop or laptops, and embedded system. गुड। तो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स? सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। नेक्स्ट, What is a supercomputer? A supercomputer is a powerful computer used for complex scientific calculations and simulations. ठीक है, सो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? दैट आर ह्यूज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, What is a personal computer? A personal computer (PC) is designed for individual use, such as desktop and laptop. सो पर्सनल कंप्यूटर आर क्या, जो डिजाइन किए जाते हैं, हम जो यूज कर रहे हैं घरों में, है ना, दीज आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। What is mainframe computer? A mainframe is a large, powerful computer used by organization to process large volume of data. सही है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया? लार्ज पावरफुल कंप्यूटर यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट, What is an embedded system? An embedded system is a computer integrated into other devices like washing machine or microwave oven. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, है ना, या इवन जैसे मोबाइल फोन है, तो उसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है। इट इज आल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, What is the CPU? CPU, Central Processing Unit, is the brain of the computer that process instructions and manages tasks. चलो ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
What is RAM? RAM, random access memory in the temporary memory, then store data and programs begin used. ठीक है, रैम क्या होता है? जो मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको दिखाया भी था, राइट? सो दिस इज अ बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी जो स्टोर करती है डाटा जब आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर. चलो नेक्स्ट बोलो. What is a monitor? A monitor is an output device that display informations visually. ठीक है, मॉनिटर जो है क्या होता है? मॉनिटर एक स्क्रीन की तरह, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आपको, सिंपल, जहां पर आप डाटा इनपुट करते हो वहां पर स्क्रीन पे वो दिखता है. What is a keyboard used for? A keyboard is an input device used to text and commands into the computer. वेरी गुड. सो कीबोर्ड क्या हो गया भाई? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर. What is a mouse used for? A mouse is an input device used to point, click and interact with items on the screen. ठीक है, तो माउस क्या हो गया कि एक डिवाइस है छोटा सा जो कि पॉइंट को क्लिक करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट. What are input devices? Devices used to send data to the computer like keyboard, mouse and scanner. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होगा? डिवाइसेस यूज टू सेंड द डाटा टू द कंप्यूटर. जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो उससे हम डाटा इनपुट करते हैं. What are output device that show or deliver results from the computer such as monitor and printer. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हुए? कंप्यूटर सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर, जहां पर आपको आउटपुट दिखता है. दैट मीन्स आप टाइप कर रहे हो तो आउटपुट कहाँ दिखा? मॉनिटर पे दिखा. या आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट भी ले रहे हो तो आउटपुट ले रहे हो ना. प्रिंट आउट, प्रिंट को कमांड दी प्रिंटर को, तो आपको पास आउटपुट आ गया डिवाइस का, राइट? चलो जी. What is storage in a computer? Storage refers to saving data permanently using devices like hard drives or SSDs. स्टोरेज इन अ कंप्यूटर. व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज इज परमानेंटली डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, जो मैंने दिखाई है आपको, या SSDs. नेक्स्ट. What is an operating system? An operating system is a software that manages computer hardware and provides services for applications. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर, जो हमने बात करी है, जो कि आपके पास जो हार्ड डिस्क है कह लो, या आपके पास जो हार्डवेयर है, सॉरी, जो आपके पास हार्डवेयर है उसको क्या करता है वो, उसमें सॉफ्टवेयर अगर अपन इंस्टॉल करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे तभी आप उस पर कुछ काम कर पाओगे, अदरवाइज इट इज लाइक अ बॉक्स ओनली. नेक्स्ट. Give one example of an operating system. Windows is a widely used operating system developed by Microsoft. ठीक है, चल रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? विंडोज है. चलो जी आगे बढ़ जाओ. What is the function of an operating system? It manages memory, process, hardware and allow user interactions with the system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या हुआ? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन है कि भाई आप यूजर हो, आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करोगे? क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, मतलब खाली मशीन है, डब्बा है. आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला तभी आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे, कभी आप उसको कमांड दे पाओगे, अदरवाइज वो एक बॉक्स है और कुछ नहीं है. क्लियर है? दूसरा भाई. What is a graphical user interface? A GUI allow user to interact with the computer using icons, windows and menus. सो बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या हुआ? जैसे कि मान ले ये दिख रहा है तुम्हें, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि मैं यहाँ पर इस कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर दूंगा जैसे यहाँ पर, ठीक है, या मैं इसको रेड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, या मैं ब्लैक कर देता हूँ. तो ये क्या है? ये यूजर इंटरफेस है. पीछे जो चल रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. समझ में आ रही है? ये बेसिकली यूजर इंटरफेस हो गया. यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि आप कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट? What are some common versions of Windows OS? Windows 7, Windows 10 and Windows 11 are common versions. ठीक है, तो वर्जन का मतलब होता है जैसे भाई एक वर्जन आ गया अभी, जैसे तुमने आईफोन का देखा होगा, है ना? आईफोन 15 आया, आईफोन 16 आया, उससे पहले स्टार्टिंग में आईफोन 5, 6, 7 जो भी है, ये वर्जन होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चलता रहता है हर सॉफ्टवेयर में. चलो. How do you start a computer? Press the power button and wait for the operating system to load. ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टार्ट करने का कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होना. चलो जी. What happens when a computer starts? The system runs a self-test, load the OS from storage and prepare the desktop. क्लियर है?
तो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम रन सेल्फ टेस्ट, लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है सो दैट हम ढंग से उसको इंटरैक्ट कर पाए, कंप्यूटर को ठीक तरीके से चला पाए। चलो नेक्स्ट। How do you shut down a computer safely? Click the start menu, select power, then click shut down. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे इमेज दिखाई देना आप लोगों को। स्टार्ट, आप विंडोज के बटन पे जाएंगे तो आपको रीस्टार्ट और शट डाउन का देगा ऑप्शन। चलो। Why is it important to shut down properly? Answer: it prevents data loss and protects the system from corruption. तो ये क्या होता है कि अगर आपका कंप्यूटर देखो सडनली बंद हो जाए, है ना, आपने मान लो डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया, तो आपने जो डाटा आपने है ना उसके अंदर, तो वो डाटा करप्ट भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है उसके अंदर। अगर आप उसको मान लो प्रॉपरली शट डाउन करते हो तो वो जितना उसके अंदर क्या एल्गोरिथम कह लो बैकएंड पे, या हम कहें जो प्रॉपर्टीज हैं उस फाइल की, वो उसको रिस्टोर करके रखेगा। तो देयर आर चांसेस कि उसके फाइल की प्रॉपर्टी भी इम्पैक्ट कर जाए नेगेटिवली, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बाद में फाइल नहीं खुलेगी। क्लियर है सबको? तो प्रॉपरली शट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। What is a login screen? It is the screen where a user enters a password or PIN to access the system. तो लॉगिन स्क्रीन क्या होती है? व्हेन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर, राइट, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो एक स्क्रीन आती है, उसमें पासवर्ड पूछता है वो लॉगिन का, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सही है, चलो। What is a देखो desktop in Windows? जैसा कि आप लोगों ने वो देखा होगा ना, कंप्यूटर के ऊपर जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो नहीं देते हो, सो व्हेन यू आर यूजिंग दैट ऑनलाइन टेस्ट, इट इज आस्किंग यू टू व्हाट, टू एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है एक तरीके से। चलो। What is a desktop in Windows? The desktop is the main screen area where icon and the टास्क बार आर शोन। ठीक है, सो डेस्कटॉप इन अ विंडो, समझ गए हो? तो डेस्कटॉप क्या है कि जहां पर आपको टास्क बार आइकन्स वगैरह दिखेंगे। नेक्स्ट। What is the start menu? The start menu provides access to program setting and power option. तो स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, जहां पर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ प्रैक्टिकली भी। द स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्रोग्राम सेटिंग एंड पावर ऑप्शंस। चलो। What is software? Software refers to the set of instruction or programs that tell the computers what to do. सही है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। नेक्स्ट। What is hardware? Hardware is the physical part of the computer system that you can touch, such as the keyboard, monitor, and CPU. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। हार्डवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, दीज आर हार्डवेयर। नेक्स्ट। What is a file in a computer? A file is a collection of data or information stored under a specific name on a computer. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली भी किया हुआ है। जब हम फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो ये आपको पूछता है कि आपका नाम क्या देना है इस फाइल का। आप लोगों ने अपना नाम दिया था, याद है? तो वो फाइल का नाम, यही बात हो रही है यहाँ पे, व्हाट इज अ फाइल इन कंप्यूटर। तो वो एक फाइल बन जाती है जब आप उसको सेव कर लेते हो। चलो जी। What is a folder? A folder is used to organize and store multiple files together in a computer. हाँ, अब देखो इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पे ना फोल्डर होते हैं ऐसे करके, ठीक है, येलो कलर के आपको दिखेंगे अलग अलग फोल्डर। ठीक है, मान लो ये ए है स्टूडेंट, ये बी है और ये सी है। आपने एक फाइल बनाई, तो आप इस फाइल को यहाँ पर सेव करोगे बाय द नेम ऑफ माई फाइल। ठीक है, तो माई फाइल करके आपने सेव करा इस फोल्डर में, जो ए स्टूडेंट है, ऐसे बी वाले का फोल्डर ये है, सी वाले का फोल्डर ये है। तो दे आर डिफरेंट फोल्डर, सो दैट अगर एक स्टूडेंट मल्टीपल फाइल्स बना रहा है, ए स्टूडेंट बहुत सारी फाइल बना रहा है, तो वो कहाँ सेव करेगा, वो इस फोल्डर में सेव कर लेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो ऐसे ही ओपन कर दिया उसने, तो यहाँ पर ए की भी फाइल है, बी की भी फाइल है, बहुत सारी फाइलें हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, प्रॉपर मैनेज करने के लिए देयर आर डिफरेंट फोल्डर्स। चलो 35। हाँ। How do you save a file on a computer? Answer: you can save a file using the save or save as option in the file menu of most applications. ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकल डिस्कस भी करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि कैसे उसको सेव करना है फाइल को। चलो नेक्स्ट। What is the function of the recycle bin in the window?
The recycle bin stores deleted files temporarily, allowing you to restore them if needed. तो रिसाइकल बिन भी एक इंपॉर्टेंट होता है। रिसाइकल का मतलब हो गया कि भाई एक ये कूड़े का डब्बा है एक तरीके से कंप्यूटर का, है ना। आपको मान लो एक फाइल की जरूरत नहीं है, आप डिलीट करोगे उस फाइल को, आपने डिलीट करा, कहाँ गई फाइल, वो गई रिसाइकल बिन में जो यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। ये रिसाइकल बिन में चली गई। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कल को आपको याद आता है कि यार मैंने तो गलत डिलीट कर दी थी फाइल, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको वहां से रिस्टोर कर सकते हो, दोबारा से सेव करोगे वहीं आ जाएगी फाइल। क्लियर है सबको? अनटिल अनलेस आप शिफ्ट प्लस डिलीट ना दबाओ, चलो फिर नहीं आएगी फाइल। What is an icon on the desktop? An icon is a small graphical representation of a program's file or functions that can be clicked to open. ठीक है, व्हाट इज एन आइकन? आइकन होता है कि जैसे फोल्डर है, मान लो फोल्डर आइकन हो गया, आप इस पर क्लिक करोगे टू ओपन दैट, आपको जो भी आइकन दिख रहे हैं वहां पर आप उसे क्लिक करोगे सो दैट आप उसको प्रोसेस कर सको उस पर्टिकुलर आइकन को। नेक्स्ट, What is a shortcut on a desktop? A shortcut is a quick link to a file, folder, or application on the desktop. ठीक है, एक शॉर्टकट बना दिया जाता है। एक शॉर्टकट का आइकन होगा, जैसे फोल्डर है मान ले, यहाँ पर एक ऐसे करके ना एक वो बन जाएगा शॉर्टकट सा, ऐसे करके कुछ बना होता है, शॉर्टकट ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। आप मान लो डेस्कटॉप पे ही है वो, और जो फाइल है वो कहीं और सेव है, डी ड्राइव में है, सही है, लेकिन आपको डेस्कटॉप से उसको एक्सेस करना है तो यहाँ शॉर्टकट होगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डेस्कटॉप से ही खुल जाएगा शॉर्टकट की। लो, What is the function of the taskbar in Windows? The taskbar allows quick access to open programs, the start menu and system notifications. ठीक है, टास्क बार ये हम डिस्कस कर चुके हैं विंडोज में, वो क्विक एक्सेस टू ओपन प्रोग्राम, स्टार्ट मेन्यू एंड सिस्टम नोटिफिकेशन। नेक्स्ट बेटा, What is a browser? A browser is software that allows user to access the navigate website on the internet. Clear है? Example Chrome and Firefox. तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर कॉल्ड ब्राउजर कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए, टेस्ट में भी आएगा ये। तो ब्राउजर क्या हो गया, क्रोम है, फायरफॉक्स है, जहां पर आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, जो हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, whatever online test we are doing or we have done during the past few days, few months, right? तो ये हम कहां पर किया, हमने क्रोम में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, What is the internet? The internet is a global network that connect million of computer for sharing data and communication. ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है ग्लोबल नेटवर्क जो कनेक्ट करता है हमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को, शेयरिंग डाटा एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, What is a URL? URL Uniform Resource Locator is the address of the web page such as HTTPS www.google.com। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, देखो URL, तो ये URL हो गया बेसिकली, ये देख रहे हो google.com। सो google.com एक स्पेसिफिकली ये डोमेन है बेसिकली, तो ये प्रॉपर URL है www.google.com। तो दिस इज कॉल्ड द URL, जो कि क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो रिसोर्स यहाँ पे क्या है, गूगल है, तो ये लोकेट करता है, ये एक बंदे के पास एक ही होगा, ये नहीं कि तुम भी google.com बना लोगे, तो ये एक ही होता है पूरे वर्ल्ड में, जो डोमेन होता है आपको दोबारा नहीं मिलेगा ये, इसके पीछे की थ्योरी अलग है, सही है। तो जो एक डोमेन आप देख रहे हो ना, वो आपको और नहीं मिलेंगे, वो एक ही होगा वर्ल्ड में बस। अगर आप इस सर्च करना चाहोगे खरीद नहीं पाओगे आप इसको, कहने का मतलब ये है, अनटिल अनलेस ये अवेलेबल ना हो, अनटिल अनलेस अवेलेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, व्हाट इज ईमेल? What is email? Answer: email. Electronic mail is a way to send and receive messages through the internet. ठीक है, तो ईमेल क्या हुआ, जो हम भेजते हैं, ईमेल इज द वे टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू इंटरनेट। चलो, What is Wi-Fi? Wi-Fi is a wireless technology that allows device to connect to the internet without physical cables. ठीक है, सो वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। जैसे हम यहाँ पर ये मॉनिटर यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी केबल, वी आर यूजिंग इट थ्रू वाईफाई ओनली। ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रही है, सो दैट इज, चलो नेक्स्ट। What is a password? A password is a secret word or code used to access a computer, programs or account. बस, ठीक है, तो पासवर्ड होता है किसी भी फाइल को अगर हम ओपन कर रहे हैं, या उसको हमने ओपन करना है, या कोई डेस्कटॉप ओपन करना है, कुछ भी ओपन करना है, और हमने उसको एक
स्पेसिफिक पासकोड दे रखा है 1 2 3 4 वट जो भी तुम्हारा होगा है, आप उसी के द्वारा उस फाइल को खोल सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that was all in this particular class for the basics about computer. We are going to discuss more on the MS Word in our next class. Now you have to appear in an online test and the link I am going to share in the description box. Thank you so much.